Is my PPT on? How are you all? Fine, thank you for coming, taking out time from your entertaining life. And I don't know what is your mindset sitting here, but I am very enthusiastic to interact with you. And I hope the interaction will be same from your side also. This will not be a one-way session. I am not here to tell you something which is very theoretical. Okay? This is going to be very practical, happening, and a very interactive session wherein you will be able to learn so many things from my life experience, and I will learn so many things from your experience also. I want to understand from you all that how is your journey going on, what are your future plans and many things. So be aware, that is the most important thing in the session if we want to continue it as a very interactive session. How many of you saw me during anywhere in the corridor? देखा है मुझे? देखते रहते हो ना? ठीक है. So I am from a MBA department. Know that? Yes. I am a faculty of MBA department, Dr. Bhagyashree. I joined just before 6-7 months to this college. So I am newer than you. You are here from past 2 years, right? मैं तो सिर्फ 6-7 महीने पहले ही इस कॉलेज में आई हूँ. तो आप लोग मेरे से सीनियर हो कॉलेज में. So thing is like, since I am having my own area of interest in entrepreneurship, my PhD was in entrepreneurship, and after that I served with Ramdev Baba College for 2 years as a ED cell coordinator for the central level college, and that's why after joining here I got the opportunity to again serve entrepreneurship development cell along with Sarvesh Bihani sir. Yeah, come in front. So यहाँ भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल की कोऑर्डिनेटर हूँ, और जहाँ भी कुछ हम कर सकते हैं बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एक स्किल सेट है. ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जब हम बात करते हैं हम लोग फिर धीरे धीरे देखते हैं बच्चे और आ रहे हैं, तो फिर हम धीरे धीरे उसके ऊपर जाएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है. सबसे पहले यही समझना होगा ना कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है. हमको सिर्फ एक एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वल टू क्या है हमारे लिए अभी तक, बोलो, बिजनेस. Entrepreneurship is equal to business. That's it for us. But being into this field, being an entrepreneur, woman entrepreneur, I can say that it is way ahead from the business. It is not only business. So we'll talk on that. Before that, I'll just introduce briefly about myself. So you'll understand that why I am standing here. So basically I am a graduate in Bachelor's of Computer Application from a small village, and after that fighting with my parents that I want to study MBA or MCA from a good institute, then they allowed that okay you can go and study in Nagpur. So I did my Masters in Business Administration from Ramdev Baba College, 2010 pass out. I cracked both the MCA also because I was very much into the computers. I used to like my languages like Java also and .NET also. I was very much aware about that. I went to Chennai and I had a certification course on .NET. So I want to do MBA, MCA also, but parallelly I have given both the entrance exam for MCA and MBA. Eventually I selected MBA because there were many things which I want to continue in my life. One of was the entrepreneurship. I want to start something on my own. So I selected MBA, and I did my MBA from Ramdev Baba College in Human Resource Management and Information Technology. There was a dual specialization. Still it is a dual specialization. So one is Human Resource Management, another specialization was Information Technology. After MBA, I got married, and we were in Mumbai, and I did walk-in for the companies. I got selected with Accenture. I was with Accenture, I served there for 1.5 years.
That's it. Again, like that, something is inside me that I want to start something for my own, and basically it was like urge to do something for the society. So basically I want to start my NGO. So 1.5 years I served for Accenture, and then I left that opportunity. Me and my husband, both of us, we left our own job. He was with ICICI, and we decided to come back to our own native place, which is Nagpur, and near Nagpur, Chhindwara district में Saucer करके है. So we thought that we will come back because youth were moving from the rural area to urban areas. Even the kids of the farmer, they don't want to continue the farming. They want to do their job in some or other multinational company. Their dream is to go to out of India, ultimate dream. But maybe they end up with some MNC or some good company in India. So 75% youth out of aspired youth, they end up with some or other small or other company. Aspiration is like they want to move ahead to some multinational company. They look for the good placements. But we had a very good, maybe say that we were having some childhood memories wherein we want to serve something for the society, both of us, and so we decided that staying in Mumbai, it's not possible to do what we want to do. So we decided that we will go back to our own native place and we'll start something. So we came back to Nagpur, and then I want to do PhD, pursue my PhD research. So I got selected in VNIT College. VNIT College was having only one post for the regular research scholar every year in humanities department. So I was there as a PhD research scholar for 4 years. 2014 I got awarded PhD doctorate, and that too in the entrepreneurship. So my subject was psychosocial dynamics of entrepreneurship. So basically I met during my research 200 entrepreneurs in and around Nagpur. There are 4 zones in Nagpur. One is, if you know, Hingna. Another is Butiburi. Third one is Kalmeshwar, and fourth one is Kampi. So these are 4 zones where you will find majority of industry setups. So I tried, you can say, to reach as much as entrepreneurs, took out the references. So I met many of the entrepreneurs and also employees. Even though the company is having only 15 employees, I met the entrepreneur and tried to understand that how the relationship goes between the employee and the entrepreneur, what urge, why he started entrepreneurship and all. So because of all those experiences I gathered during my research, so I understood that who is entrepreneur, what entrepreneur do, what is that particular thing, that fire in the belly, that they don't want to work under someone else, but they want to generate the employment. Don't be an employee, but generate the employment for others. So various stories I came across, and then during the PhD only we also started working on our own NGO. So that NGO is now grown up till like 1 lakh subscriber. Now we will reach in YouTube. Through YouTube we started, and every month we give training to more than 100 people from past 7 years. So it's a different success story of our NGO. But being a successful woman entrepreneur, I also got awarded with many Indian Organic Award and Innopreneur, which is Lemon Idea. How many of you know about the Lemon Idea? You don't know about that? So you need to explore many things, okay? So Lemon Idea is a Nagpur-based company run by Deepak Menaria. So way back in 2014 he started with this company to generate the entrepreneurs in and around Nagpur. And with the collaboration of IMT College. You all know about the IMT College near Katol? So IMT College, they started their own contest, which is Innopreneur 2014. So every year now also they are doing it.
So we were the runner-up in that contest. There were 60 entries, national level entries for different kind of idea projection. So we got to understand that how people judge you, how customer needs, which kind of ideas people are coming with. So there we started our journey, and there are so many things we achieved during our this business purpose or NGO driven successful entrepreneurship project. And during VNIT I learned many things. After that I just tried. One of my friends said, "Chalo, jaake we will see how the interview goes for the assistant professor in Ramdev Baba. It's there. You just come along with me, even though you don't want to do your academics profile, but still you come with me." So I went and I got selected. So everybody said, because it was my own home, like I have done my MBA from Ramdev Baba itself. So there was some or other, attachment with the faculties of Ramdev Baba. So I thought, let's serve for some day. So I joined Ramdev Baba College as assistant professor for MBA Institute. And I was there for 2 years. Again, I served over there, and since अभी आप लोगों को ED है, ED सब्जेक्ट है क्या? As a क्रेडिट या नॉन क्रेडिट में कहीं ऑडिट कोर्स ईडी का इंजीनियरिंग में नहीं है? ओके, वहाँ पर इंजीनियर्स को ईडी एक ऑडिट कोर्स होता है, वो शायद इंडस्ट्रियल वाले वो लोग देते हैं, तो ईडी वो लोग लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल। सो वहाँ पर मैंने बच्चों को पढ़ाया भी, एंड फिर पता चला कि किस तरह से इंजीनियरिंग के बच्चों के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप का कहीं ना कहीं इनोवेशन का, आइडिया जनरेशन का वो एक माइंडसेट होता ही है। ऑल्दो आप बिजनेस नहीं करना चाहते या बिजनेस में अपना करियर नहीं बनाना चाहते हैं, बट स्टिल यू हैव दैट क्वालिटी इनसाइड यू। सो वी विल टॉक ऑन द क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, नॉट एंटरप्रेन्योर्स, बट आई गिव द नेम इंट्राप्रेन्योर। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द इंट्राप्रेन्योर? एनीवन ऑफ यू हर्ड अबाउट द इंट्राप्रेन्योर? So intrapreneur is a very important term. Nowadays, if you are joining any of the company, then look after the main quality, which is intrapreneur. Whether you have the quality of intrapreneur or not. Suppose if you have a quality of intrapreneur, you will get a very good level of position in the company, or else you will get very good package in the company. So what is intrapreneur? We will understand it later. So starting from here. देखो कैसे है, एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग, इंडिया में आने वाला 20 साल जो है वो एंटरप्रेन्योर्स का है, ठीक है? देखिए हर साल कम से कम 1 करोड़ लोग जो है एजुकेशन कर रहे हैं, एजुकेशन में जा रहे हैं, उसमें से 10 लाख लोग इंजीनियर बन रहे हैं, बाकी 5 लाख लोग में भी लॉयर, डॉक्टर, अदर प्रोफेशंस में जाते हैं, और बचा हुआ जो गैप है वो पूरा का पूरा गैप जाता है एक नॉर्मल डिग्री ले, बीएससी हो गया, आर्ट्स हो गया, ये सारी डिग्रीज में जाता है, बीकॉम हो गया, और फिर उसी में अपना आगे, इसीलिए हमारे यहाँ पर कहा जाता है ना डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी थीम है जहाँ पर आपके पास में अभी डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा स्कोप है। So, आने वाले 20 साल कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स के हैं इंडिया में। जितना हाउ मेनी ऑफ यू लुक फॉर द शार्क टैंक और ऑल दिस काइंड ऑफ मेजॉरिटी, एवरीवन मे शार्क टैंक सब देखते हो, राइट? काफी लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं शार्क टैंक? हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो बिजनेस ओरिएंटेशन है, हम जानना चाहते हैं बिजनेस कैसे होता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इनोवेशंस क्या है मार्केट में। बिकॉज बीइंग एन इंजीनियर आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है? अल्टीमेट पर्पस क्या है? जॉब है, लेकिन क्या करना, क्या कर्म क्या है? वो तो आपका फल हो गया, पैसा कमाना, जॉब ये फल है, कर्म क्या है? करोगे क्या? हाँ बताओ, जॉब भी करोगे तो करोगे क्या? हाँ क्या करोगे? Bit loudly. Yes. सर्व करोगे, यस, हाँ सर्व करोगे सोसाइटी को, ठीक है, गुड। क्या करोगे? क्या करोगे?
नहीं पता, जो कंपनी काम देगी वो कर लेंगे टेबल पे बैठ के, है ना, राइट। इनिशियल लेवल पे क्या काम देती है कंपनी इंजीनियर्स को, पता है आपको, पता है, पता है क्या काम देती है? हाँ, क्या काम देती है? कोर में भेजती है क्या? हाँ, कोर वर्क करने भेजेगी तुमको, मैकेनिकल का स्पेशलाइज्ड पर्दा बना के भेज देगी कि क्लरिकल काम देगी सबसे पहले? पूछना बच्चे, तुम लोग ने इंटर्नशिप किया है कभी? अभी आने की है ना? किस टाइप की इंटर्नशिप्स मिलती है? हाँ, किस टाइप आपके मैकेनिकल में आपके सीनियर्स को किस टाइप की इंटर्नशिप्स मिली होगी? क्या काम करते हैं? कोर में नहीं कर पाते हैं, राइट? उनको साइड के वर्क दिए जाते हैं जो कंपनी में सबसे बोरियत वाला काम है, जो नहीं करना चाहते बाकी सीनियर्स, वो काम दिए जाते हैं फ्रेशर्स को या तो फिर इंटर्न्स को, राइट? तो ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहीं से आप लोगों की लर्निंग स्टार्ट होती है, इफ यू टेक इट पॉजिटिवली, ठीक है। इंजीनियरिंग ही एक ऐसा स्ट्रीम है जहां से आप सबसे ज्यादा लर्निंग, तो कहते हैं ना, सोना बनने के लिए जितना उसको तपाया जाता है कोयले को, उतना इंजीनियरिंग में आपको तपना पड़ता है। बाकी फील्ड में आप देखो तो थियरीज और ये सब करके पास होना आसान है, लेकिन यहाँ पर इंजीनियरिंग में आपको बहुत घिसा जाता है, मतलब हर चीज में आपको मारामारी है कहीं। अब एक नाम मैं देती हूँ उसको, वो है जुगाड़। जुगाड़ के अलावा इंजीनियरिंग का कोई रास्ता है आगे निकलने का, पास होने का? ब्रिज, वो ब्रिज को हम जुगाड़ बोल सकते हैं। जो बच्चे साल भर या 6 महीना ना पढ़ते हुए 1 महीने में 6 महीने के रेलिवेंट असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं, इससे बड़ा जुगाड़ू बच्चा कोई हो सकता है क्या? वो भी इंजीनियरिंग का असाइनमेंट। अपने दोस्तों के साथ जो आप लोगों का डिस्कशन चलता होगा, या जो दोस्त आप लोगों के एक दूसरे को चिढ़ाते होंगे, आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड जब भी डिस्कशन होता है, आप लोग नहीं जानते हो कि आपके ब्रेन के साथ में कितना ज्यादा पॉलिशिंग हो रहा है। जब आप लोग इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो ये जो आपके इंजीनियरिंग के डेज है, ये जो मेमोरीज है, ये जो आपका उठा पटक है और सारा जुगाड़ वाला है, ये सारी चीजें, ये जो जितना ज्यादा इसके अंदर घुसेगा, इस अनकंफर्टेबल कुएं के अंदर जो जितना ज्यादा जाएगा डीप, उतना ही वो पॉलिश होके बाहर निकलेगा। ये याद रखना। जिसने ऊपर क्रॉस कर लिया, कोई जुगाड़ नहीं किया, कुछ नहीं किया, इधर से छापा उधर से छापा, निकल गया, या फिर बहुत ही सिंसियरली पढ़ाई कर लिया, वो उतना नहीं आगे जाएगा जितना इस इंजीनियरिंग में आप जुगाड़ से आगे जाते हो। इट्स अ ट्रूथ। सिर्फ आप ही के लिए नहीं, करोड़ों इंजीनियर्स निकल रहे दुनिया से, सबसे ज्यादा जिसके पास जुगाड़ है वो सबसे टॉप पे है, isn't it? Yes. So we are ultimately serving the society. As a fresher, whenever you will join, you will not get the core stream of yours. लेकिन यदि आपने इनिशियल लेवल में आपने खूब सारे जुगाड़ किया है और आपके अंदर इंट्राप्रेन्योरशिप स्किल्स है, जुगाड़ वो सबसे ज्यादा कर सकता है जिसके अंदर इंट्राप्रेन्योरशिप स्किल्स है। अब इंट्राप्रेन्योरशिप आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो होता है वो हम बिजनेस लेवल की बात करेंगे, लेकिन इंट्राप्रेन्योर्स जो होते हैं, इंट्रा का मतलब होता है अंदर ही अंदर, ठीक है? सो अंदर ही अंदर मतलब आपके माइंड में आप इंट्राप्रेन्योर हैं और आप लीडर के रूप में उभर रहे हैं। आप खुद का तो जुगाड़ करते ही हैं, साथ में आपके साथ 10 लोग हैं, उनके लिए भी जुगाड़ू काम करके देते हैं। इसे कहते हैं इंट्राप्रेन्योर। तो कहते हैं कि आप यदि खुद के काम को तो सराह रहे हो, लेकिन आप खुश हो कि आपके साथ जो 10 लोग हैं वो भी ऊपर ऊंचाई पर उठ रहे हैं, यदि इसे देखकर आप खुश हैं तो आप एक अच्छे लीडर हैं।
ये याद रखना। मास्लो की हायरार्की है, आपने पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी होगी, एमबीए में हमारे है ये। तो वैसे हमारे वेद पुराणों में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बट हमारे यहाँ क्या होता है ना, बाहर से फॉरेन से आकर लोग रिसर्च करके जब वो थ्योरी बना के जाते हैं तभी हमें लगता है कि ये सही है। मास्लो हायरार्की जो है उसमें सबसे टॉप पिरामिड का है वो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन। फिर उसके नीचे अलग अलग है, एस्टीम है, पर्सनल अचीवमेंट है, सब चीज़ है, लेकिन सबसे टॉप में होता है सेल्फ रियलाइजेशन। सो जब हम, अब आप देखिए जितने भी एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं, अदर क्रीचर्स की बात करते हैं, उन्हें बताना पड़ता है कि सुबह उठो रे उठो रे उठो रे। देखा है कभी किसी बर्ड को या किसी एनिमल को उठा रहे हैं, खाना खाओ रे? वो जैसे ही एग से बाहर आता है या बर्ड कोई बाहर आ रही है, उसको पता है कि उसकी लाइफ प्रोसेस क्या है। कहा जाता है कि देयर आर, आप जानते हैं ना गैलेक्सीज के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, ऐसे करोड़ों सोलर सिस्टम है, लेकिन एक मनुष्य ही है, एक ह्यूमन बीइंग ही है जो सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट और टॉप लेवल का स्पीसीज या क्रीचर है जो प्रकृति ने बनाया है। लेकिन आज ऐसा नहीं लगता है देखकर, क्योंकि हर चीज में हमें स्पून फीडिंग चाहिए होती है, और वही आप बाकी क्रीचर्स को देख लो, उनकी सारी प्रोसेसेस डिफाइंड है, राइट? सो बेसिकली क्या होता है, लीडर का काम होता है कि वो खुद तो खुश रहे ही, उसके आजू बाजू के लोगों को खुश देखकर वो और खुश होता है। यही एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है, और इन क्वालिटीज को जब आप अपने अंदर इम्बाइब करते हो, आपके इमोशंस को आपको पॉलिश करना होता है। उसके लिए जब आप अपने इमोशंस को पॉलिश करते हो, देखो फाइट तो होती ही रहती है, दो भाई बहन, आपका और आपके बाजू वाले का, या हजारों लोगों को एक साथ बैठा दो, उसमें ओपिनियंस मैच होना बहुत डिफिकल्ट है। ओपिनियंस कभी किसी के मैच नहीं होंगे। इट डजंट मीन कि आप लोग एक, फिर तो बोर हो जाएगी लाइफ यदि सबके ओपिनियन एक जैसे रहेंगे, तो लाइफ में कुछ करने को ही नहीं रहेगा, राइट? ड्रामा या कोई मूवी सबसे ज्यादा हिट वही होती है जहां पर सबसे ज्यादा क्लैशेस दिखते हैं आपको ओपिनियंस में, कुछ ट्विस्ट होता है कहानी में, कुछ मिस्ट्री होती है, तभी आपको वो पसंद आता है। तो लाइफ भी वैसी ही होनी चाहिए। लेकिन जब आप वर्क में हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर अ लीडर। अचीवमेंट के लेवल पे 3 हायरार्की है, एक है इंडिविजुअल, फिर आता है ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल। तो आप खुद के पर्सनल ओपिनियंस को, पर्सनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए लगे हैं, साथ में ग्रुप के इंटरेस्ट को भी अचीव करना चाहते हैं, और साथ में ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरेस्ट को भी अचीव करना चाहते हैं। ये यदि आपके ऑब्जेक्टिव और एम्स और गोल्स में आ जाता है तो यू बिकम अ कंप्लीट लीडर। सो दैट्स व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर दैट इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप एज अ एंटरप्रेन्योर या एज अ एंटरप्रेन्योर जॉब करने जा रहे हैं तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है? आपके अंदर यदि वो क्वालिटीज है, आपने ईडीसेल में एक्टिवली आकर यहाँ पर जो भी वर्कशॉप्स और एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट किया है, आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस रखते हैं जहाँ हम मेंटोर्स को बुलाते हैं, आपके सीनियर्स को बुलाते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं, जैसे विशाल अग्रवाल सर, आप जानते हैं? प्लास्ट्रो जानते हैं? प्लास्ट्रो कंपनी, इतने बड़े लोग, करोड़पति क्या उससे भी कई गुना आगे। मतलब वो कहते हैं कि 1 सेकंड में यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे 150 ट्रक जा चुके हैं प्लास्टो के भर के। वो बहुत हाई लेवल के जो लोग हैं जिनकी जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल रही है, उनके साथ आपको रहने का मौका देते हैं, उनके साथ आपके डिस्कशंस करवाते हैं। आपके अंदर बस एक ही अल्टीमेट एम है कि आपके अंदर वो शाइन, वो इंथुसियाज्म हम लोग डालना चाहते हैं फ्रॉम ईडीसेल, जो कि आप यहाँ पर बैठकर नहीं पा सकते हैं। आपको या तो बाहर जाना होगा, या ब्रेनस्टॉर्मिंग में बैठना होगा, या कुछ ऐसे सेशंस आपको अरेंज करने होंगे जिन सेशंस के माध्यम से आपके अंदर वो शाइन आएगा। सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी डू इन ईडीसेल व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड नाउ इनोवेशन पहला था जुगाड़, दूसरा है इनोवेशन। हर इंजीनियर के अंदर एक ना एक इनोवेटिव स्किल्स है दैट
आई कैन प्रूव। मतलब हर इंसान अपने आप में यूनिक है, मानते हो? हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ एक सुपर एक्स फैक्टर है। हर स्टूडेंट सुपर हीरो है, हर स्टूडेंट। सो व्हेनेवर आई सी फ्रॉम माय आईज टू माय स्टूडेंट्स, आई नेवर पार्शियल नहीं होता है मेरा नजरिया कि यार इसने ज्यादा किया इसने कम किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर आर अनलिमिटेड क्वालिटीज अवेलेबल इन दिस स्पेस, वी आर ऑल इन द स्पेस। सो ये आकाश जो है, स्पेस जो है, ये एक तत्व है, यू नो, 5 तत्व पता है आपको? 5 एलिमेंट्स, यू नो, उसमें से एक आकाश है। इसमें करोड़ों करोड़ों क्वालिटीज, जो क्वालिटी जिस बंदे ने ग्रैब कर ली, यदि उसको उसने शाइन करके पॉलिश करके आगे बढ़ता है। 3 इडियट देखी है आपने? उसमें क्या होता है, उसे फोर्स किया जाता है इंजीनियरिंग करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जब वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करता है करियर, तो वो एक अलग ही लेवल पे सेटिस्फेक्शन में रहता है, राइट? वैसे ही हम लोगों ने जब MBA कर लिया, PhD कर लिया, अच्छी कॉलेज, अच्छी कंपनी में हम लोग जॉब कर रहे हैं, हमको छोड़कर हम लोगों ने हमारा इंडिजीनियस काऊ के ऊपर हमारा काम है, तो हमें सब बोलते थे कि इनके दिमाग में गोबर घुस गया है, फैमिली से लेकर हर कोई। लेकिन आज जब वो लोग देखते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं फर्टिलाइजर सेव, सॉइल को सेव करने के लिए, साथ में इंडिजीनियस काऊ को बचाने के लिए, साथ में न्यूट्रिशियस फूड कैसे दिया जा सकता है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कैसे, ये सारा जो विजन हमारा था, वो विजन तो किसी ने पहचाना नहीं। सो जो एक विजनरी होता है वही अपने लाइफ में आगे जा सकता है। जैसा कि मैंने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या करने वाले हैं इंजीनियर बनके? पैसा कमाएंगे, जॉब करेंगे, ठीक है? आपका ही नहीं, मैंने बहुत जगह पे ये लिखवा के भी लिया है। एक मेरे पास में फॉर्मेट है जिसमें मैं फिल करवाती हूँ कि आपके अचीवमेंट गोल्स क्या। अल्टीमेटली यूथ जितना भी इंजीनियरिंग में आया उसमें से सिर्फ 3 से 4% यूथ होता है जो विजनरी होता है। बाकी सब जो भेड़ चल रही है दुनिया में उसी में जाना चाहता है। पैसा कमा लिया, मम्मी पापा को सेटिस्फाई कर, अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन आपको लाइफ में, आप जब पैसा बहुत कमा लोगे ना और आपके पास में बहुत कुछ आ जाएगा, जब आप जो अभी बोल रहे हो वो हर चीज आपको मिल जाएगी, तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। तो आई जस्ट वांट टू से दैट डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी क्या हो रहा है, हमारे पास में टाइम बहुत है लेकिन हमारे पास में एम्बिशंस नहीं है। आपके पास एम्बिशंस जितने बहुत ही लिमिटेड एम्बिशंस है कि हाँ बस वही पहुंचना है, तो आपने अपनी क्वालिटीज को वहां पर खत्म कर दिया है। आप सिर्फ वो एम्बिशन तक पहुंचने के लिए उन क्वालिटीज को खींच के इधर से उधर से अपने अंदर इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन आप वो क्वालिटी नहीं एस्पायर कर पा रहे हो जो आपके अंदर है, ऑलरेडी है, जिसे आपने शाइन करना चाहिए। सो एज एन एंटरप्रेन्योर, यदि आप साइड में भी कुछ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन अपने लाइफ में ला पाते हो, लाइक सभी के अंदर कुछ ना कुछ आइडियाज होगी, आप सभी देखते हो कि कहाँ पर कौन कैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। आपने यदि सुबह आप घर से निकल रहे हो तो आपको बस में दिख रहा है, तब भी आपका माइंडसेट चलता है कि यार ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर सकता हूँ मैं। इंजीनियर माइंड ही होता है जो प्रॉब्लम्स को देखता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोचता है। होता है ऐसा आप लोगों के साथ, सभी के साथ होता है। सो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो होता है ना, यही बंदे को एंटरप्रेन्योर बनाता है। पैसा कमाना अल्टीमेट एम नहीं होता है एंटरप्रेन्योर का, वो तो बाय प्रोडक्ट है। वो तो उतना कॉन्फिडेंस लेकर ही आगे बढ़ता है कि पैसा कमाना है, मतलब वो बैक ऑफ द माइंड फिक्स है कि पैसा आना ही आना है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, सीरियल एंटरप्रेन्योर्स कितने सारे होते हैं जो एक के बाद एक नई यू नो अपनी खुद की कंपनीज। अब देख लो, आप देखो बहुत सारे लोग आप देखोगे समर्स में आइसक्रीम की फैक्ट्री खोल लेंगे, वही आप उसके बाद में बारिश में जाओगे तो रेनकोट बेचते हुए दिखेगा, वही आप जाओगे ठंडी के दिनों में तो वही बंदा आपको वुलन क्लोथ्स बेचते हुए दिखेगा। क्या यही एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, दैट्स इट। प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलो या इनोवेटिव एटीट्यूड बोलो, एक ही बात है। सो इंडिया में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर यूथ के अंदर वो एक कहीं ना कहीं आपके एस्पिरेशन होना चाहिए कि आपको करना ही है कुछ साइड में। आप लोगों के कोर डोमेन से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडियाज आपको आती है। सपोज आप ही के कोई सीनियर है सूरज, जिन्होंने व्हील्स अभी ऑनलाइन वो घर पे भेज देते हैं और आपकी गाड़ी सर्विसिंग के लिए लेके जाते हैं, तो बहुत अच्छा चला रहे हैं वो अपना। आपके सुपर सीनियर या 2-3 साल पहले से पास आउट हुए हैं, उनका एक मैंने रखा था एडीसन में, उनका सेमिनार भी रखवाया था।
तो वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने अपने अंडर में 10 मैकेनिक रखे हैं और एक अच्छा सा वेंचर बनाया है। सिर्फ उन्होंने ये शुरू किया है कि सर्विस जो होगी वो ऑनलाइन होगी। सो यदि मैंने उनको कॉल किया है, विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर उनका बंदा आके मेरी गाड़ी लेके जाता है। नेक्स्ट डे मिनिमम टाइम में वो आपकी गाड़ी सर्विसिंग करके रिपेयर करके आपको ला के दे देता है। आप जहाँ हो वहाँ से लेके जाता है, आप जहाँ हो वहाँ ला के दे देता है। क्या कर रहा है और अच्छा खासा कमा रहा है। उसका टर्नओवर यदि आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। This is something wherein you can actually explore yourself. I am not saying again that you should, skip your placement activity. You should aspire for that also. Space food आप जानते हैं, कितने लोग जानते हैं स्पेस फूड के बारे में? विवेक देशपांडे सर वहाँ पर बैठते हैं। मैं उनसे पर्सनली बहुत बार मिली हूँ, बच्चों को भी लेके जाती हूँ, हर साल इंडस्ट्रियल म्यूजिक पे। He is a VNITN पास आउट। वो और किरीट जोशी दोनों ने मिलके पार्टनरशिप में कंपनी की शुरुआत की। स्पेस फूड जो है यूनिक फर्नीचर बनाता है जर्मन टेक्नोलॉजी से। एंड उनकी स्टोरी आप सुनोगे एज एन इंजीनियर तो आपको बहुत ही इंस्पिरेशन मिलेगा। आई मे कॉल हिम sometime here for the EDCEL student. Now I have 200 student registered from complete SBJIT MR college who are interested in EDCEL activities. So यदि मेरे पास में ऐसे 200-250 स्टूडेंट SBJIT के हैं तो मैं बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को डेफिनेटली बुला सकती हूँ। And they can definitely inspire us also. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसे आप लोग कहते हैं रिस्क टेकिंग। बस वहीं पर हम लोग डर जाते हैं। यार रिस्क कौन लेगा, बिजनेस खोल के रिस्क कौन लेगा, कहाँ से पैसा आएगा, आया नहीं तो क्या करूँगा। बिकॉज आई नो दैट वी आर हियर विद वेरी हार्ड एंड अर्न मनी ऑफ आवर पेरेंट्स। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं मैं जानती हूँ कि उन्होंने जो इंजीनियरिंग में पैसा लगाया है वो पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। और उस पैसे को आप लोग डेफिनेटली फिर से ब्रेकडाउन टाइम उसका आप ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहोगे और आप लोग चाहोगे कि वो जल्दी से जल्दी आपकी जॉब से रिटर्न आ जाए और फिर आगे आपकी इनकम शुरू हो। यस, एवरीवन वांट्स दैट। सो रिस्क टेकिंग फैक्टर एबिलिटी जो है ये कब डेवलप होगी, जब आप ऐसे एग्जाम्पल्स देखोगे। बहुत सारे, अच्छा आप में से कोई है जो बिजनेस क्लास से, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं? गुड। सो जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक एक्सपेक्टर आ जाता है बिजनेस को लेकर। दे हैव देयर माइंडसेट आल्सो, उन्हें समझ में आता है कि बिजनेस कैसे रन करना चाहिए। लेकिन जो बिजनेस फैमिली से नहीं है और बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, जो पहली बार अपनी आइडिया को एक्टिवेट और एग्जीक्यूट करते हैं लाइफ में। तो यदि आप लोग अपनी किसी आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं लाइफ में तो आपको इन लोगों से ज़्यादा मिलना होगा जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है एंटरप्रेन्योरशिप के बिजनेस में। आप लोग उनसे मिलेंगे, उन्हें सुनेंगे, उनके चैलेंजेस, इसे कहते हैं केस स्टडी या फिर लिटरेचर रिव्यू जो हम करते हैं ना, जिससे हमें वो जो फेलियर्स उन्होंने, जो गलतियाँ उन्होंने की वो हम अपने लाइफ में ना दोहराएं और हम लोग डायरेक्टली ऊपर की सीढ़ी पे पहुँच कर स्मूथली अपने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट को चला सकें। ये बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए हम लोग अच्छे एंटरप्रेन्योर्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं। EDCEL में हमारे पास में सीड फंड भी है, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी ऊपर में सेंट्रल लाइब्रेरी के साइड में हम लोग एक रूम को क्लासिकली डेवलप कर रहे हैं प्रॉपर थीम के साथ, जहां आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा आपके बिजनेस को रन करने के लिए। आपको वहाँ स्पेस मिलेगी, वहाँ पे आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे, हाईटेक कंप्यूटर्स विद इंटरनेट फैसिलिटी। एंड ऑब्वियसली आपका जो ये है इंटर्नशिप और जो भी आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है वो आपको डिपार्टमेंट अलाउ करेगा कि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट आप उसमें सबमिट कर सकते हो। तो आपका जो वो टाइम है इंटर्नशिप का या आपका जो वो टाइम है जिसमें आप लोग कहीं पर कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं, वो टाइम आप अपने खुद के प्रोजेक्ट में लगा सकते हो यहाँ पर रहते हुए, कॉलेज में रहते हुए। साथ में आपको मेंटोरिंग मिलेगी। एक बार आपका MSME से हमारे यहाँ पर आएंगे लोग जो आपके आइडियाज़ को स्क्रूटिनी करेंगे, आपकी आइडियाज़ उन्हें पसंद आती है तो आपके आइडियाज़ पे सब्सिडी, मेंटोरिंग, जो भी रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ की फुलफिलमेंट होगी यहाँ पर। सो इंक्यूबेशन सेल एंड EDCEL एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द सीड मनी इफ यू हैव अ पोटेंशियल इन योर आइडिया। So we will be having all the facilities which you can acquire if you are in the college during your college time. So अभी आपके पास में अराउंड 2-3 साल है, 2-2.5 साल और है। So यदि आपके माइंड में कहीं भी कुछ भी आइडिया है तो एक तो आप उसके ऊपर
रिस्क लेके देखिए। प्लेसमेंट में तो बैठना ही है। आई एम अगेन सेइंग इट डजंट मीन कि आप ईडी सेल में आ गए तो आप प्लेसमेंट में नहीं जा रहे। प्लेसमेंट में तो अल्टीमेटली आप बैठो, करना ही चाहिए। 1-2 साल 3 साल का आइडिया हमने लेना चाहिए, पैसा कमा लेना चाहिए और उस पैसे को इन्वेस्ट करके आप अपना बिजनेस। लेकिन अभी से यदि आपके अंदर वो है कि आपको अचीव करना है, कुछ बिजनेस आइडिया है आपके अंदर, हजारों ऐसे बिजनेस आइडियाज मैं आपको बता सकती हूँ। आप आगे जाइए। जैसे आप जानते हैं बड़ा पाव, गोली बड़ा पाव जानते हैं, बहुत ही छोटे से शुरुआत किया था। ऐसे हजारों आइडियाज हैं जो करोड़ों में खेल रहे हैं अभी, और वो बहुत छोटी आइडियाज हैं। सो बिजनेस, अच्छा यहाँ पर एक और मैंने सोचा है फैसिलिटी जो मैं अभी अपने स्टूडेंट्स को दे भी रही हूँ कि सिंस लाइक आप तो इंजीनियर है, लेकिन आपको हो सकता है वेबसाइट बनाने के लिए किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, आपको आपके फाइनेंसेस हैंडल करने के लिए किसी एमबीए की जरूरत पड़ेगी। सो सारी टीम आपको यहीं पर हम बना कर देंगे। अपने ही कॉलेज के एक्सपर्ट्स पैनल में होंगे स्टूडेंट्स जो अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, जो अच्छा ऐप बनाते हैं, जो अच्छा मार्केटिंग करते हैं, जो अच्छा फाइनेंस जानते हैं। और सपोज आपके पास आइडिया है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए इन 5 लोगों की टीम मैं आपको दूंगी जो आपके साथ में पैरेलली काम करेगी वहां बैठकर। मार्केटिंग के लिए हमारे यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिनके पास में आइडिया है, वो लैपटॉप्स जो है बहुत हाई क्वालिटी लैपटॉप सेकेंड हैंड अच्छी कम से कम रिजनेबल रेंज में सेल करते हैं और इवन इसके लिए भी देते हैं क्या कहते हैं उसे, किराए पे। सो इनको हम लोग अभी प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, नॉट ओनली इन एसबीजीआईटी, ऑल्सो इन अदर कॉलेजेस जहाँ पर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो लोग इनसे परचेज कर सकते हैं। एक आइडिया हमारे पास में है कि वो मेड्स, वुमेन्स को घर पे जो वर्किंग वुमेन है उनके पास में मेड्स की इशू आती है, तो उन्हें अच्छी मेड नहीं मिलती है। सो क्वालिफाई मतलब प्रॉपरली उनका चेक करके कि वो सही है नहीं है, उनका पास्ट कैसा, प्रॉपरली मेड्स को एनरोल करके उनके वेबसाइट पे ऐप पे नियरेस्ट लोकेशन में कौन सी मेड आपके लिए अवेलेबल है उसमें दिख जाएगी। ऐसे कई सारे गुड आइडियाज हैं और बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज हैं जिनको वो लोग एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं और यहाँ से हम कर सकते हैं एग्जीक्यूट। सो ऐसा नहीं होता है कि कोई आइडिया छोटा या बड़ा होता है, हर आइडिया में पोटेंशियल है। बस एक आइडिया था राजू बाबा में, वो बच्चे ने क्रैकर को जब हम फोड़ते हैं, ठीक है, हम लोग जब जलाते हैं उसको तो हमारा हाथ जलने का डर होता है उसमें, राइट, तो उन्होंने एक स्टिक बनाई जैसे सेल्फी स्टिक होती है, यहाँ से आप बटन प्रेस करोगे क्रैकर उधर बर्न होगा। So this kind of very smart and small ideas which can be actually taken over in our panel and we can discuss, we can take you to the relevant people जो इस फील्ड से रिलेटेड जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं नागपुर के सराउंडिंग में या अदर सराउंडिंग्स में। अभी आईआईटी खड़गपुर में वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा समिट होता है 7 का, वहाँ पर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, गैदरिंग होती है, उनका मीटिंग्स होती है, वहाँ पर हम जाएंगे अपने आइडियाज को पिच करेंगे। सिम्बोसिस में मैं बच्चों को लेके गई थी, अभी टाइकॉन हुआ था, वहाँ जाकर मैंने आइडियाज पिच करवाई। सो ये सारी चीज़ें जब साइड बाय साइड चलता रहेगा आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके आइडिया के अंदर पोटेंशियल है या नहीं है। यदि है तो लोग खुद आपको ऊपर उठाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आप तो देख ही रहे हैं शार्क टैंक पे कितने छोटे छोटे लोकल आइडियाज आप देख रहे हैं जिन्हें वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। रूरल एरियाज में यदि आप जाओगे, वुमेन्स जो प्रेग्नेंट होती है उन्हें प्रॉपर फूड तक नहीं मिल रहा है, जो उन्हें गाइडलाइन होनी चाहिए वो तक नहीं मिल रही है। आप कितने सारे बच्चे आप देखिए जाकर गांव से यदि आप लोग बिलोंग करते हैं, आंगनबाड़ी में बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है। सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी आर लैकिंग ऑफ। कंप्यूटर इलिटरेसी है, टेक्निकल इलिटरेसी है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं है। सो देयर आर 100 काइंड ऑफ प्रोजेक्ट व्हिच वी कैन स्टार्ट विद आवर आइडिया प्रोजेक्शन। सो दिस ऑल आर brainstorming is something wherein we'll all sit together and we'll talk on someone's idea. Suppose तुम्हारे पास कुछ आइडिया है, तुम्हारे आइडिया के ऊपर हम लोग बैठकर डिस्कस करेंगे और उस डिस्कशन से जितने भी पॉइंट्स आते हैं। How many of you see various shows like रणवीर अलाहाबादिया का शो, पॉडकास्टिंग, मतलब पॉडकास्टिंग इज अगेन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। कुछ नहीं, यूट्यूब से हम कितना कमा रहे हैं, कितना बड़ा उसके साथ में पैरेलल उनका मार्केटिंग का एक और वेंचर है, बट बेसिक स्किल। हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल? कहीं ना कहीं लगता है कि यार मेरा भी यूट्यूब चैनल होना चाहिए। सही बोलना, सही बोलना है, नहीं बोला सही तो सही में हो जाएगा स्टार्ट, समझो यहाँ पे बोल दिया तो इतनी तो हिम्मत रखो, कोई मना नहीं करेगा।
मैं जानती हूँ हम सब चाहते, कहीं ना कहीं हाथ धीरे धीरे ऊपर सबके उठ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग उतना या तो टाइम नहीं निकाल पाते या हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। हमने अपने अंदर वो कैपेबिलिटी या क्वालिटी को डेवलप किया भी होगा तो उसको नजरअंदाज कर दिया है। हम कॉन्फिडेंट नहीं है खुद को लेकर। डोंट यू थिंक दिस इज द बिगेस्ट फ्रॉड इन आवर लाइफ विच वी आर डूइंग विद अवरसेल्फ। हम दूसरों को देखते हैं कि यार वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन हमें लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। हम अपने लाइफ के साथ सबसे बड़ी मिस्टेक और फ्रॉड कर रहे हैं ये सोच के। हर बंदा कॉन्फिडेंट है, सिर्फ प्रिपरेशन नहीं है, और प्रिपरेशन करने के लिए टाइम और माइंडसेट नहीं है। यदि आपके पास प्रिपरेशन है तो आप कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? है। यदि आप प्रिपेयर हो किसी चीज के लिए तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो? है। तो हम प्रिपेयर्ड क्यों नहीं है इस पे देखना पड़ेगा पहले। प्रिपरेशन कहाँ से शुरू होती है? सेल्फ एनालाइज से। कोई और आपके बारे में बोलेगा उससे शुरू होगी कि प्रिपरेशन? नहीं, सेल्फ एनालाइज से शुरू होगी। सो सेल्फ एनालाइज करना बहुत जरूरी। हाउ मेनी ऑफ यू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ, मे बी इन द मॉर्निंग और इवनिंग और इन बिटवीन लंच या बीच में कभी? 1 2 खुद के लिए टाइम कितने लोग निकालते हैं यहाँ पर? हम लोगों का जो माइंडसेट है ना वो इतना बड़ा है। अब देखो आप लोग इस एज पे आ गए हो कि यहाँ पर यदि आपने ये बात नहीं समझी तो पूरा लाइफ टाइम पछताना है। फिर तो आप वैसे ही बन के रह जाओगे जैसे बाकी के लोग हैं, अपनी लाइफ से रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, यार मैंने क्या कर दिया। यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप लोग जानते हैं IQ क्या होता है? ओके गुड। EQ क्या होता है? EQ वेरी गुड, यस, इमोशनल क्वेश्चन, राइट? इमोशनल क्वेश्चन। SQ क्या होता है? यस, एनीवन प्लीज आंसर। SQ आप लोग दुनिया को जानते हो कि क्या चल रहा है दुनिया में, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है आपको ये नहीं पता है। प्रॉब्लम यहाँ शुरू हो रही है हमारे यूथ की। आप जानते हो हम लोग यूटिलाइज किए जा रहे हैं बाकी नेशंस के द्वारा, इंडियन यूथ को यूज किया जा रहा है। ये एक बहुत ही बिटर ट्रूथ है। हम जानकर भी हम वैसे ही बने रहना चाहते हैं, हमारे अंदर वो आता ही नहीं है जज्बा या वो जोश कि हम क्या है ये समझने की कोशिश कर ली जाए। SQ इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन, जिसकी आज दुनिया में सबसे ज्यादा बात होती है। IQ को पीछे छोड़ दिया गया है। IQ अब सबके अंदर आ गया है। कहा जाता है कि इंटेलिजेंट तो हर बंदा हो गया है। जब बंदा सेल्फिश हो जाता है तो इंटेलिजेंट हो ही जाता है, ठीक है, लेकिन EQ खत्म हो गया है। और EQ खत्म होने से, इमोशंस खत्म होने से ही हमारी डायरेक्शन जो है रॉन्ग साइड में जा रही है। देखिए ये सिर्फ आप लोगों को पर्टिकुलरली मैं पिन पॉइंट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ये जनरल डेटा है, ठीक है। आप और हम तो इन एरियाज से आए हैं और ऐसे दिन देखे हैं हमने हमारे पेरेंट्स के साथ। हमारा EQ बहुत बैलेंस्ड है। हर बंदा जो SB JIT MR में है वो किसकी तरफ देखता है? या तो रामदेव बाबा कॉलेज की तरफ देखता है, वहाँ के बच्चों की तरफ, या हमारे यहाँ से जो भी टॉप कॉलेज होगा, MBA है तो सिम्बोसिस देखेगा, IMT देखेगा। जो सिम्बोसिस में बंदा बैठा है और रामदेव बाबा में जो बंदा बैठा है वो किसकी तरफ देखता है?